So proteins are the functional entities in your body. Proteins are responsible for what you do in your daily life. Now, how proteins are formed? How proteins get this info out of the DNA? The reason this road to functionality is transcription. Now, DNA regions that can be transcribed into proteins and sometimes RNA are known as structural genes. So, whole genome needs to be replicated क्योंकि उसने अपनी पूरी कॉपी खुद बनानी होती है. But only small portion of the genome is transcribed in response to the development requirement, physiological need and environmental changes. तो जब हमने रेप्लिकेशन देखी, रेप्लिकेशन में तो आपका पूरा का पूरा जीनोम रेप्लिकेट हो रहा था और तमाम ऑर्गेनिजम्स में ऐसे हो रहा है. लेकिन जब हम ट्रांसक्रिप्शन देख रहे हैं तो बहुत स्मॉल पोर्शन उसका ट्रांसक्राइब होगा, यानी कि उससे फंक्शनल एमआरएनए बनेंगे. लेट्स लुक इनटू डिटेल. फ्रांसिस क्रिक in 1962 gave this central dogma that from DNA RNA is made and from RNA protein is made. So if anybody ever asks you this question, that what is the central dogma of biotechnology, biochemistry or molecular biology, it will be this: DNA to RNA and RNA to protein. Now, the synthesis of RNA molecules using DNA strands as the templates so that the genetic information can be transferred from DNA to RNA. This is one of the very basic definitions of transcription. But there are quite similarities between replication and transcription. For example, both processes use DNA as the template. Phosphodiester bonds are formed in both cases. Both synthesis directions are from 5' to 3'. Actually, this is true for all the polymerases. Now, we can actually look at it in a tabulated form. But the small differences are that RNA, obviously transcription leads to RNA, and RNA is single-stranded. Substrate for it is ribonucleotide triphosphates instead of deoxyribonucleotides. Replication, you need primer for the initiation, but not in transcription. Enzyme in replication is DNA polymerase and transcription is RNA polymerase. इसको याद रखना बहुत आसान है. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सबस्ट्रेट कौन सा है. रेप्लिकेशन में डीएनए सबस्ट्रेट है, ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए बन रहा है. और व्हाट इज द प्रोडक्ट? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. बेस पेयर एटीजीसी है और ट्रांसक्रिप्शन में आपके पास टी की जगह यूरासिल है. To comprehend the importance of transcription, it is important to understand that how the genome is organized in prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes और eukaryotes में genome एक तरह से organize नहीं हुआ हुआ. तो हम लोगों को ये fine differences understand करने पड़ेंगे. फिर हमको समझ आएगा कि अगर मक्खी में सिर्फ उतने जीन्स हैं, मसलन हम में 2 मक्खियों के बराबर जीन्स हैं, हम में एक चूहे के बराबर जीन्स हैं, तो हाउ कैन वी गिव राइज टू दिस मच कॉम्प्लेक्सिटी? या बैक्टीरिया में भी अगर उतने ही, यानी कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है हमसे जीन्स की तादाद में, तो हम इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों हैं? ये हमको इस ट्रांसक्रिप्शन से ये चीज समझ आती है. ओके, नाउ इन प्रोकैरियोट्स व्हाट यू आर वाचिंग हियर इज दैट दिस पी denotes basically a promoter, and after promoter you see a structural gene, then there is a termination region. ये जो एरो है, ये वाला एरो, ये आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन किस साइड के ऊपर, और वो कौन सी साइड, किस साइड के ऊपर है? इस डायरेक्शन में. ओके, नाउ स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब्स इटसेल्फ इनटू एमआरएनए. द प्रोड्यूस्ड एमआरएनए इज यूज्ड फॉर ट्रांसलेशन विदाउट एनी प्रोसेसिंग. तो हमारा अगला जो इसके बाद टॉपिक होगा दैट वुड बी ट्रांसलेशन, कि अल्टीमेटली एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बनती है. लेकिन let's see that what happens in eukaryotes. Each transcriptable region is called an operon. तो जितना एरिया आपने ट्रांसक्राइब होना है ना, जितना एरिया प्रोमोटर ने प्रोमोटर से लेकर एंड तक, which will ultimately make an mRNA, is known as an operon.
इसमें आपके पास स्ट्रक्चरल जीन्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर आपके पास रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी आ जाती हैं। तो ऐसी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जो बेसिकली उस जीन के बनने या ना बनने को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, दे ऑल come under the auspices of operon. So now what happens in eukaryotes? You have a promoter, and in front of the promoter there is a long sequence, but that whole long sequence is not going to be expressed because there are certain exons and certain introns. तो इसमें जो exons हैं वो रीजन हैं जो अल्टीमेटली जीन का पार्ट बनते हैं. You can call them expressive regions. बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रॉन्स, ये जो येलो मार्क हैं जिनके ऊपर अब मैं कांटा मार रहा हूं, ब्लू कलर से मैंने क्रॉस मार्क किया है, दीज आर नॉट एक्सप्रेस्ड. लेकिन प्री प्रोसेसिंग प्राइमरी स्क्रिप्ट के अंदर एमआरएनए के अंदर ये आएंगे. इसमें आप काफी सारी डिफरेंट चीजें देख रहे हैं. यूकैरियोट से आप ये लॉन्ग ए टेल देख रहे हैं जो आप प्रोकैरियोटिक वाली पिक्चर में नजर नहीं आई थी. तो एक एमआरएनए व्हेन इट इज इन यूकैरियोट्स इट पासेस थ्रू वेरियस प्रोसेसिंग स्टेजेस. लेकिन अल्टीमेटली इससे जो फायदा होता है कि डिफरेंट एक्सप्रेशन एलिमेंट्स अल्टीमेटली सप्लाइज टुगेदर होते हैं. ये ब्लू एक्सप्रेस हो रहे हैं और आरएनए के अंदर आके जो फंक्शनल ट्रांसक्रिप्ट बना है उसमें ये सारे इकट्ठे आ गए हैं. तो इससे ये वेरियस कॉम्बिनेशंस के अंदर भी आ सकते हैं जिससे उस प्रोटीन का फंक्शन बदल जाता है. ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं. ओके, what you are watching here is a picture of a Drosophila. So in Drosophila what happens that alternative splicing of the double sex primary transcript produces two different mRNAs. So the first three exons, if you look closely, I would like to indicate here, the first three exons are spliced together and fourth one is missing, and that gives rise to a male fruit fly. Okay, अगर हम चौथा जो एक्सॉन है वो निकाल दें स्प्लाइसिंग के दौरान तो अल्टीमेटली 1 2 3 5 6 के कॉम्बिनेशन में इट विल बिकम अ मेल फ्रूट फ्लाई. ओके, लेकिन व्हाट हैपेंस इन फीमेल्स कि ये 5 और 6 ऐड नहीं होते, सिर्फ 1 2 3 4 के ऊपर आके वो खत्म हो जाता है, एंड दैट गिव्स राइज टू अ फीमेल फ्रूट फ्लाई. वन थिंग अबाउट जीन एनोटेशन इज कि जहां पर आप ये पोली एडिनाइलेशन का साइन देखेंगे तो इसका मतलब है इट्स सॉर्ट ऑफ अ स्टॉप कोडॉन. इन जिस तरह प्रोकैरियोट्स में स्टॉप कोडॉन होता है इस तरह आपको यानी कि डीएनए लेवल पे स्टॉप कोडॉन होता है, इस तरह आपको इसमें ये पता लग जाएगा कि अगर पोली एडिनाइलेट टेल आ रही है तो इसका मतलब है कि एमआरएनए अल्टीमेटली यहां से ब्रेक कर सकता है. यानी कि लास्ट एक्सॉन कभी 1 2 3 नहीं होंगे बट 4 हो सकता है या 6 हो सकता है. ठीक है, लेकिन एमआरएनए स्प्लाइसिंग का फायदा क्या हुआ? एमआरएनए स्प्लाइसिंग का असल फायदा यह हुआ कि जो वन जीन वन हाइपोथेसिस था वो ब्रेक हो गया. इससे पहले लोग बिलीव करते थे कि देयर इज अ वन जीन और वो सिर्फ एक ही प्रोटीन को जन्म दे सकता है, लेकिन ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से एक जीन स्प्लाइसिंग के बाद वेरियस सॉर्ट ऑफ प्रोटीन्स को, वेरियस पॉलीपेप्टाइड्स को बना सकता है. ओके, सो कुछ और डिफरेंसेस भी, मसलन प्रोकैरियोट के अंदर आपके पास बहुत क्लियर है कि एमआरएनए प्रोसेस हुए बगैर सीधा ये राइबोसोम्स अल्टीमेटली राइबोसोम्स से जाके अटैच हुआ और ट्रांसलेट होना स्टार्ट हो गया, जिसके ऊपर हम बाद में डिटेल में बात करेंगे. लेकिन इसमें पहले प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना, वो प्रोसेस हुआ और फिर अल्टीमेटली वो जाके राइबोसोम्स के पास गया और अल्टीमेटली उससे प्रोटीन बनना स्टार्ट हुई. अब इसमें जो देखने वाली चीज है कि किस किस्म की मॉडिफिकेशन हो रही है. जस्ट स्लाइटली यू हैव आरएनए पॉलीमरेज ने डीएनए को ओपन किया, 5 प्राइम साइट के ऊपर एक कैप किया और अल्टीमेटली एक आप ये क्लीवेज सिग्नल देख सकते हैं कि पूरी पोली एडिनाइलेशन टेल लग रही है यहां पे बाय द एडिशन ऑफ पॉलीमरेज. ओके, एंड ऑल्सो वन लास्ट थिंग इन इट्स मॉडिफिकेशन कि बैक्टीरिया के अंदर तो न्यूक्लियाई नहीं था, उसके अंदर तो कोई न्यूक्लियोलस नहीं था, तो अल्टीमेटली इट वाज ऑल इन साइटोप्लाज्म. लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल तो एमआरएनए हैज टू कम आउट ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियाई की सेल मेम्ब्रेन है, ताकि उससे बाहर आए न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू और अल्टीमेटली ट्रांसलेट हो. सो दीज आर अ फ्यू डिफरेंसेस, एंड देन वी लुक एट
prokaryotic transcription in more detail.